this class, we will learn about phase problem and what is mean by phase problem. Phase problem is about simply, phase problem is about simply the intensity of your incident radiations. Whatever that intensities are there, that intensities have their notation simply IHKL. Whatever this IHKL is there, that IHKL is directly proportional to modulus, square modulus of our structure factor. Of our structure factor, that is nothing but FHKL square, square of structure factor. So whatever the square of structure, square of your modulus is here, which is about your structure factor, it tells us about जब कभी भी जो नॉन मैथमेटिशियंस है उनके लिए है अब ये चीज, जब कभी भी हम मॉड में कुछ भी चीज बताते हैं, वो चीज मतलब कि वो थिंग मतलब कि वो एंटिटी मतलब आप समझ लीजिए एफ इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर फैक्टर विच इज सपोज फॉर एग्जाम्पल positive or for example negative. Then how can you represent that structure factor? See, whatever these terms are there, these terms whatever their plus or minus values are there, that if you are taking their summations, then that summations will not have any notation, means na plus na minus, it will be neutral. मतलब कि वहां पर माइनस प्लस कुछ भी आता है तो वहां पर मॉड जब आप देते हो तो उसके साइन के रिगार्डिंग कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो अब ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब कि हम क्या पढ़ रहे हैं? फेज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं. तो इस फेज प्रॉब्लम में ये जो कुछ भी हमें फेज प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों को एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि फेज प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू दी विच टाइप ऑफ, to the which type of unit cells. So you have to darken the option which is nothing but the non-centrosymmetric unit cell, which is what beta? Non-centrosymmetric. कसा है तो विच इज नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स. किसके लिए देते हैं हम ये? फॉर नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स. मतलब दिस प्रॉब्लम इज मोर एंड मोर फॉर योर नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स, मीन्स हु डू नॉट हैव एनी centrosymmetric property which you have learned in your group theories. That's why I'm not going into the much details of that. So whatever that non-centrosymmetric unit cells are there, for that we are not giving, we are having this problem. So whatever this our problem means, whatever these FHKL values are there, these FHKL values, these FHKL values, simply we can have very if we have a complex number, then whatever that complex numbers are there, these complex numbers, wait a minute, let me just clear some slide points to tell you. See, whatever this your FHKL value is there, these FHKL values can have some complex numbers. Now you may ask me, ma'am, what type of complex number it can include? So it can have the complex numbers like mod of FHKL raised into e raised to I raised to alpha. Where now you may ask me again, ma'am, you have given us mod of FHKL e raised to I alpha. Okay, so what is mean by this alpha? So alpha is nothing but the phase. Alpha is nothing but the phase of FHKL, and it's a magnitude, and it's a what? Magnitude. Then whatever that intensity is there, that intensity can have the ambiguity. That intensity can have the ambiguity which is ranging from minus 2 pi to plus 2 pi, which is ranging for the 2 pi. So whatever this ambiguity is there, this ambiguity is known as phase प्रॉब्लम. इसी एम्बिग्यूटी को हम क्या बोलते हैं? फेज प्रॉब्लम. अब ये अगर से आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर के आप लोगों को फेज प्रॉब्लम ये जो आ रहे थे, इस फेज प्रॉब्लम को हमने कैसे रिमूव किया या फिर इस फेज प्रॉब्लम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मैं बोलने की आप लोगों को कोशिश करती हूँ. मतलब क्या, ये जो कुछ भी फेज प्रॉब्लम है, फेज प्रॉब्लम इज अबाउट नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स, एंड ये जो कुछ भी फेज प्रॉब्लम होते हैं, ये फेज प्रॉब्लम
कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइक FHKL I अल्फा के लिए हो सकते हैं। तो FHKL I अल्फा मतलब वेयर अल्फा इज नथिंग बट द सिंपली योर फेज, अल्फा इज नथिंग बट द सिंपली फेज। अब ये जो कुछ भी आप लोगों के एम्बिग्युइटीज होते हैं आपके फेज प्रॉब्लम में, ये हम दूर कर सकते हैं, फेज प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग सम मेथड्स, एंड दैट मेथड्स आर नथिंग बट very first one method can be known as Patterson synthesis. The next method is known as direct method. The next method is known as direct method. See what I am telling you, ये जो कुछ भी फेज प्रॉब्लम आ रहा है, इस फेज प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओवरकम कर सकते हैं ए पॉइंट को, मतलब कि कुछ एक्सटेंट तक ये पॉइंट हम कम कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो हम यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में 2 पॉइंट्स होते हैं या फिर 2 मेथड्स होते हैं, ऐसा मैं बोलूंगी। तो उसमें से पहली मेथड है पैटर्सन सिंथेसिस और दूसरी मेथड है डायरेक्ट मेथड। और दूसरी मेथड कौन सी है जी? दूसरी कौन सी मेथड है जी? डायरेक्ट मेथड। अब ये जो कुछ भी मेथड से, ये मेथड्स अगर से आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आप लोगों को ये मेथड एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये जो कुछ भी मेथड है, तो ये मेथड इज नथिंग बट, वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग दिस स्लाइड। व्हाट हैपेंड? हाँ, आवाज येतोय? कॉन्सेप्टच कळत नाहीये फेज प्रॉब्लेमचं. Very good. Okay, let me tell you at once again. Okay. What is phase problem? Phase problem is the problem which is about non-centrosymmetric molecules or non-centrosymmetric unit cells. Okay, म्हणजे काय? Simply, आता हे जे काही तुमचे युनिट सेल्स होते, लेट टेल यू, ते लिहून सांगते हा. सी व्हॉट इज मीन बाय फेज प्रॉब्लेम ते सांगते, किंवा हे काय का आले हे प्रॉब्लेम ते सांगते पहिल्यांदा. चला ठीक आहे, अजून रिपीट करते. सी whatever this phase problem is there, this phase problem means like we can have the HKL values like 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 like this we have or not. So अभी ये जो कुछ भी हमारे रिप्रेजेंटेशन मेथड से, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं 2 1 1, ये क्या है बेटा? ये HKL वैल्यूज है, और ये जो कुछ भी HKL वैल्यूज है, ये HKL के वैल्यूज हम इवनली बता सकते हैं। मतलब 2 2 means that its value can become 6, its value can become 6, but we can't determine, अच्छे से सुनो सब लोग, we can't determine for the odd values like 7 आपण 7 या व्हॅल्यू साठी देऊ शकतो का आपली हे जे काही रिप्रेझेंटेशन मेथड आहे HKL व्हॅल्यूज वगैरे, तर ते देणं थोडंसं डिफिकल्ट जात होतं. म्हणजे त्यांचे स्ट्रक्चर वगैरे रिप्रेझेंट करणं काय होत होतं, उनके स्ट्रक्चर वगैरह, सॉरी मैं मराठी में चली गई, उनके स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ भी थे, किसके लिए, अच्छे से सुनो फिर एक बार सब लोग, ये जो HKL वैल्यू है वो HKL वैल्यू फॉर द नंबर 7, फॉर वेट let me take pen. For the number 7, we are not able to explain it clearly. So whatever these unit cells are there who are having the values like 7 and all, for that this phase problem is there, and whatever this phase problem is there, this phase problem is severe for our, again I am telling you, इसी ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को जिसको कि हम बोलते हैं नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स. क्या बोलते हैं बेटा? नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन क्लियरली? येस मॅम. काय सांगतेय ते आता? हो मॅम. ओके, सो यस एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर your replies guys. ऑड नंबर असतील. आवाज नाही येते बेटा तुझा. काय? ऑड
नंबर असतील तेच नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक असतात का? हा 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 तसं तुम्ही म्हणू शकता थोड्या वेळासाठी. पण जेव्हा आपण डेप्थ मध्ये जाऊ तेव्हा मग फक्त 7च नाही तर तिथे वेगवेगळे पण नंबर्स येतात हा. मग तसे आता जेव्हा तसे 7 सारखे हे जे काही त्यांचे HKL व्हॅल्यूज असतात ना, तर त्या लोकांसाठी आपण त्यांचे इंटरप्लेनर स्पेसिंग डिस्टन्सेस म्हणजे त्यांचे जे काही प्रेडिक्शन काढू शकत नाही आपण त्यांच्या डायफ्रॅक्शन पॅटर्नचं म्हणजे लॅटिसेस वगैरे देऊ शकत नाही आपण त्यांचे. मग त्यावेळेला आपल्याला कोणता प्रॉब्लेम येतो तो फेज प्रॉब्लेम येतो. आणि त्या फेज प्रॉब्लेमलाच आपण काय म्हणू शकतो की मग कोणत्या प्रकारच्या मॉलिक्युल्स म्हणण्यापेक्षा मी इथे ना युनिट सेल्स म्हणेन. तर ते यूनिट सेल्स कौन से होंगे तो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स होंगे. कौन से होंगे? नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक यूनिट सेल्स. समझ रहे हो अब आप? समझ रहे हो आप Yes, ma'am. एवरीवन? एवरीवन? हो मॅम. Okay, so let me continue. Before moving towards anything, please tell me, is there any background noise from my side? No, ma'am. Clearly फक्त माझा आवाज येतोय? Yes. ओके, थँक्यू गाईज. सो आता तुम्हाला फेज प्रॉब्लेम काय आहे हे समजलं असेल असं मी अपेक्षा करते. आणि हा जो काही फेज प्रॉब्लेम है, हा फेज प्रॉब्लम ओवरकम करण्यासाठी ये जो कुछ भी फेज प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास में कितने मेथड्स है? 2 मेथड्स. कितने मूव करू ना? समझ तो रहे हो? येस मॅडम. Yes or no? हो मॅम. ओके, सो लेट मी टेल यू. अब ये डिटेल में पढ़ना नहीं है हमें, ये चीज समझ लो. क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी मेथड्स है हमें ओवरकम करने के लिए फेज प्रॉब्लम के, ये डिटेल में हमें एक्सपेक्टेड नहीं है. बट ये मेथड्स क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ. तो पहली मेथड है पैटर्न सिंथेसिस एंड दूसरी है डायरेक्ट मेथड. तो पैटर्न अजरा क्या हुआ? अजरा म्यूट करो. अब ये जो कुछ भी पैटर्न सिंथेसिस है ये पैटर्न सिंथेसिस आप लोग आपके किसी भी मॉलिक्यूल का जो कुछ भी ओरिएंटेशन होता है उसे डिटरमाइन आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जो कुछ भी एटम्स होते हैं उनमें जो कुछ भी एटम्स का ओरिएंटेशन मतलब कि वो एटम्स कैसे मूव होते हैं क्या मूव होते हैं वो बताने के लिए वो हम किस पर से बता सकते हैं? तो पैटर्न सिंथेसिस पे से. तो पैटर्न सिंथेसिस हम कैसे बता सकते हैं? तो हमने पहले ही बोला था कि फेज प्रॉब्लम जो भी होता है तो फेज प्रॉब्लम इंटेंसिटी एंड आपका जो भी स्ट्रक्चरल फैक्टर है वो एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और हमने एक चीज बोली थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाज गिवन बाय विद और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली FHKL and FHKL is nothing but the factor structure factor is nothing but कोणता factor बेटा? Structure factor. And whatever this structure factor is there, this structure factor and your rho value मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड योर स्ट्रक्चर फैक्टर वाली रो वैल्यू, इनमें रो मतलब ये इक्वेशन किस चीज का है? सिंपली एंड सिंपली आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप लोग पूछ सकते हो मुझे कि मैम व्हाई आर यू टेकिंग हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इक्वेशन अगेन एट वंस? बिकॉज हमें रिप्रेजेंट करना है पैटर्न सिंथेसिस. और पैटर्न सिंथेसिस हमें किस चीज के बारे में बताता है? तो ये जो कुछ भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में, ये मॉलिक्यूल्स का जो कुछ भी ओरिएंटेशन होता है वो ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन बोले तो क्या कि आपके एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे घूमते हैं. मतलब कि आपने कभी सुना है इलेक्ट्रॉन्स को बहुत बोर हुआ और वो आप जैसे एक ही जगह पे बोर हो रहा है बोल के चुप बिना काम के जैसे कि वैसे बैठ गए हैं. आप लोग भी बैठते हो क्या चुपचाप से? बोर हो रहा है तो बोर होतंय म्हणून तुम्ही काय करता? काहीतरी वेगळं इंटरेस्टिंग असं करायला प्रयत्न करता. लाईक इट सेम सिंपली अगदी इलेक्ट्रॉन्स आर ओरिएंटिंग. Like it same, your electrons are orienting, and whatever your electrons are there that are orienting, and when they are orienting, you can represent it with the help of your electron density. With what beta? Electron density.
and that electron density equation is in front of you, which we have learned already. नाउ अब ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो कुछ भी सेपरेशन वगैरह होता है आपके कोऑर्डिनेट्स का, उनमें अब सारे के सारे एटम मुझे बोलो अब एक कदम मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ बेटा, नहीं तो आप लोग बोलोगे मैडम आपने बोला तो यही एग्जाम्पल होना चाहिए। मैं सिंपली एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ जो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है, एक जस्ट मॉलिक्यूल ले रही हूँ, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल में अब मुझे बोलो H2O बोले तो H का मतलब जो कुछ भी आवाज Hello? नाही येत आहे मॅम. येस आवाज कटला असणार आहे कारण देअर वॉज कॉल फॉर मी. ओके, आता येतोय आवाज? मॅडम Yes, H and in H2O molecule, H2O is not the correct example. सिर्फ आप लोगों को मुझे कंसेप्ट बतानी है, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। रुको थोड़ा ब्राइट पेन लेती हूँ। ये जो कुछ भी H2O मॉलिक्यूल है, इस H2O मॉलिक्यूल में H और O मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कुछ भी एटम होगा वो हाइड्रोजन इज लाइटर, लाइटर म्हणजे लाइटर घराचं गॅस वाला लाइटर नाही हा। आणि ऑक्सीजन इज हेवियर एंड लाइटर मीन्स देयर जो कुछ भी एटॉमिक नंबर्स आर देयर विथ दैट रिप्रेजेंटेशन वी आर टेकिंग अ लाइटर एंड हेवियर न्यूक्लियाई। अब ये जो कुछ भी हेवियर लाइटर न्यूक्लियाइज होते हैं उनके जो कुछ भी लोकेशंस होते हैं वो लोकेशंस में हेवी एटम की जो कुछ भी लोकेशन होती है, हेवी एटम की जो कुछ भी लोकेशन होती है वो हम इजीली दे सकते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर की वजह से, क्योंकि स्ट्रक्चर फैक्टर जो होगा अब हेवियर एटम का वो ज्यादा होगा। हेवी है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब ज्यादा, तो स्ट्रक्चर फैक्टर उसका हम इजीली बता सकते हैं एंड वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट सेल पर से। और ये जो कुछ प्रोबेबिलिटी होती है हम रिप्रेजेंट करने की, ये रिप्रेजेंटेशन फैक्टर वी कैन give because of the structure factor of a centrosymmetric cell, because of centrosymmetric cells form। मतलब कि आपके पास में अब जो कुछ भी स्ट्रक्चर फैक्टर है F, that structure factor F can be given for heavy nuclei, lighter nuclei plus lighter nuclei like it so on, and this is all about your Patterson synthesis. Now we have learned this method in detail. Now we will move towards the next method, and that next method is nothing but the direct method. Which method it is? Direct method. So whatever this direct method is there, that this direct method was developed by the scientist H. Hopman and J. Carley. This method was given by the scientist or developed by the scientist H. Hopman and the J. Carley. And whatever this method was based on the possibility of your atoms in unit cell as being virtually randomly distributed. मतलब क्या? अब आप लोग बोलोगे मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बोलती हूँ। अब देखिए ये जो कुछ भी डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड इज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट H. Hopman and J. Carley, एंड ये जो कुछ भी मेथड है ये मेथड बेस्ड थी आपके पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटिंग द एटम्स इन यूनिट सेल। मतलब क्या कि आपके यूनिट सेल, आपके एटम में कौन कौन सी यूनिट सेल है, वो यूनिट सेल कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस पर डिपेंडेंट है ये आपकी टेक्निक। अब ये टेक्निक बताने के लिए आप लोग कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हो। अब ये जो कुछ भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आप लोगों को इस आपके मेथड के बारे में बताने में थोड़ी सी मदद करते हैं। तो वो आप लोगों को किस चीज का रिलेशन बताते हैं, तो अगेन इट विल गिव यू द रिलेशनशिप फॉर the relationship between structure factor and sum of their squares and sum of their squares। जैसे कि हमने अभी अभी कुछ देर पहले फेज प्रॉब्लम बताते टाइम बोला था I is directly proportional to I, मतलब
density is directly proportional to the modulus of square modulus of FHKL, and FHKL is nothing but the structure factor. अब वही डायरेक्ट जो मेथड है ये, इसमें हम ये डायरेक्ट मेथड बताते हैं हमारे पॉसिबिलिटी पे। किस पॉसिबिलिटी पे बताते हैं? तो ये जो कुछ भी आपके यूनिट सेल्स है, वो यूनिट सेल्स रैंडमली मूव होते हैं आपके एटम्स में। अब ये जो कुछ भी यूनिट सेल मूव होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे। अब आप लोग बोलोगे मैम स्टैटिस्टिकल टेक्निक मतलब क्या? मतलब वो फर्मियन है, बोसॉन है, ऐसे ये जो कुछ भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होती है उनकी मूवमेंट। मूवमेंट मतलब यूनिट सेल कैसे क्या अरेंज होंगे वो। अब ये जो कुछ भी यूनिट सेल होते हैं आप लोगों के, तो ये यूनिट सेल जो कुछ भी होते हैं, तो वो यूनिट सेल एक तो वेट मिनट, एक तो आपके ये जो यूनिट सेल है वो FHKL, और you can represent it with the help of their FHKL square मॉड। उनके मॉड ले सकते हो, सॉरी उनके स्क्वायर ले सकते हो, या फिर उनके स्ट्रक्चर फैक्टर FHKL पर से आप बता सकते हो। और ये जो कुछ भी आपकी F वैल्यू है, FHKL वैल्यू मतलब स्ट्रक्चर फैक्टर है, वो उनकी जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी होती है किसके इक्वल होते हैं, वो मतलब ये जो FHKL है वो किसके इक्वल होगा? तो F के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? F के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो रुको मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ दूसरे पेन से, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये पेन ना दिखे। तो FHKL कैन बी इक्वल टू, मतलब ये जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें जो कुछ भी आपका स्ट्रक्चर फैक्टर होता है वो डिपेंड होता है आपके यूनिट सेल के डिस्ट्रीब्यूशन पे। और वो जो यूनिट सेल का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो यूनिट सेल कैसे क्या अरेंज होता है, वो किस पर डिपेंडेंट है? तो स्टैटिस्टिकल मेथड पे वो डिपेंड है। और ये जो कुछ भी हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड से, ये स्टैटिस्टिकल मेथड हमें बताते हैं हमारे यूनिट सेल कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब सॉलिड कैसा होगा। और वो बताने के लिए हम हेल्प लेते हैं structure factor, that is nothing but FHKL value, and that FHKL can be equals to F का स्क्वायर। F का स्क्वायर मतलब FHKL into FHKL। अब मैं FHKL बोल के नहीं लिख रही हूँ, इसके बॉटम में FHKL होगा। अब आप लोग मुझे बोलो FHKL का मीनिंग बोले तो क्या? FHKL मतलब उनके जो कुछ भी, अच्छे से सुनो रे बाबा, उनके जो कुछ भी अब यूनिट सेल्स होते हैं, मतलब वो HKL मतलब एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे वो जो मिलर इंडाइसेस हम देते थे, उनका जो कुछ भी डिस्टेंसेस लाइक 100, 122, 111 वगैरह, बट हम ये किस लिए दे रहे हैं? ऑड साइड्स के लिए। अब ऑड मतलब क्या? FHKL वैल्यू विल बी ऑड। मतलब इवन के लिए हम FHKL वैल्यूज इजीली डिड्यूस कर सकते हैं। वहां पर फेज प्रॉब्लम आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। बट ऑड प्रॉब्लम्स, ऑड मॉडल्स के लिए, ऑड क्या बेटा? मॉडल्स के लिए, मतलब ऑड FHKL वैल्यूज के लिए। किसके लिए? किसके लिए? ऑड FHKL। We are giving this structure phase problem for odd FHKL, which can be like 5, which can be like 7, and so on. But here we are representing this FHKL value. For example, wait a minute. That is nothing but F1, 2, 2 के लिए। अब मुझे बोलो इस 1 to 2 का अगर से आप कैलकुलेशन करो तो कितना आएगा इसका कैलकुलेशन? 2 + 2 + 1 विल बी इक्वल्स टू 5, विल बी इक्वल्स टू रफली 5। फिर ये ऑड हुआ कि इवन हुआ? ऑब्वियसली ऑड। and then after FHKL value for 2, 3, 2, 2 + 3 + 2 will be equal to 7. It means that again it is becoming odd. And when you have this odd, like your odd FHKL values means structure factors, when they are odd, at that time we
can have phase problem. We can have which problem? Phase problem, and that's for we have represented इस phase problem को represent मतलब कि overcome करने के लिए हमने दो methods दिए, जिसका के नाम है Patterson synthesis और दूसरे का नाम है direct method। और इसी के साथ हमारा point खत्म होता है phase problem। Are you guys clear? Yes, I'm waiting for your replies. बापरे, आवाज येत होता की नाही? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, sir. I think clear? Uh, Sure. नक्कीच नक्कीच Are you guys clear? Yes, ma'am. Okay.